And Baba had written a script for the film, which was to take place in the Hollywood. And last time, through that script and scenario, we have learned about the four life journey of three characters. It helped us a little to understand the karmic impressions and relations, human relations, and reincarnation. And now, then we also learn what are the experiences of that character on the path and various planes. It was given in detail last lecture, we saw that. And Excuse today me, we are Mayra. on, I'm sorry. yeah. I forgot. Do we record your meeting or not? Yes. Should I be recording? No, Yes. I do not record No, someone but else. but we do Yeah. record. We do record. Okay. Yeah. All right. Okay. So I am recording. All right. Thank you. Yeah. Sorry. Okay. That's okay. Jai Baba. So now we are on page number 186, other notes and dictations. And Betty is going to read it, this chapter, other notes and dictations, up to page number 188. And once she is through, up to point number 8, then I like to narrate it in short in Hindi for others to understand. That is okay. Okay. Yeah, please. All right. Yeah, you So can these start, Baba. these are Jai Baba. These are extracts from Meher Baba's dictation to Margaret Mayo, December 3rd, 1931. Points for Sri Meher Baba's film. A. Creation. Deep darkness. Oh, sorry, I make myself louder. The darkness gradually to vanish into hollow space. Number 3. In the hollow space, a tiny point of light appears. 4. From the point comes forth Akasha and Prana. See the drawing in the letter below. All right, now, shall I read this? No, this is the same thing. Yeah. This Yeah. is the Okay. original copy. Then you can move on to page number 187, point number 5. Yeah. All This is right. the point we have seen just now. Number 5. These come together like this with a clash, chaos. See drawing in typed scenario on facing page. Number 6. And from this whirling chaos, the primal elements of fire, water, air, and earth come forth. Number 7. From these 4 begins evolution. See drawing, rotating, starting with the electron. Describe this process according to typed copy up to the appearance of the monkey. The final monkey form is the gorilla, to look half man, half ape. 8. Next to gorilla appears the cannibal, and now begins the story. Yeah, thank you, Betty. Till this point, let me narrate it in Hindi. See, हम लोगों ने ये पूरा जो सृष्टि की निर्मिति की प्रक्रिया बाबा यहाँ समझा रहे, और इसको हमने पूरा देखा है पहले इन डिटेल. तो यहाँ पॉइंट वाइज और ओरिजिनल जो बाबा का स्क्रिप्ट का कॉपी है, जो दिसंबर 3, 1931 ऐसी डेट भी उसमें दिखी है, आपने अभी जस्ट देखा था पहले पेज में. तो ये कॉपी भी यहाँ दी है, और उसमें एकदम पॉइंट वाइज बाबा ने दिया है कि सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, उसको दिखाना कैसा है, हाउ टू शो इट इन द फिल्म, दैट ऑल्सो बाबा हैज एक्सप्लेन. तो फर्स्ट पहले आपको डार्कनेस दिखाना है. फर्स्ट यू हैव टू शो द डार्कनेस, दैट व्हाट इज इट, नथिंगनेस. Then second point Baba explains is slowly this darkness goes.
धीरे धीरे ये अंधेरा खत्म होता है और वहां पर एक पोकल हॉलोनेस, ये स्पेस ऐसा जहां कुछ भी नहीं, वो निर्माण होता है। इसके पश्चात तीसरा मुद्दा है कि ओम पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, या क्रिएशन पॉइंट जो कह सकते हैं, इसको कैसे दिखाना है? तो बाबा कहते हैं एक छोटा बिंदु निकल के आ रहा है, a small point is appearing in that hollow space, ऐसा दिखाना है। दैट मीन्स इट इज अ क्रिएशन पॉइंट और ओम पॉइंट। और चौथा मुद्दा बाबा ने ये फोर्थ पीछे पॉइंट वाली दिया लाइट है। जला दो। हाँ, यस, चौथा मुद्दा है कि ये जो क्रिएशन पॉइंट है, यहाँ here Baba has not mentioned it as Om point or creation point, nothing. He has just mentioned a teeny point because he is writing it for a film. So, but we can understand, हम लोग समझ सकते हैं कि this is a creation point from which comes आकाश and प्राण। इसमें से जिसको हम कहते हैं कि आकाश और प्राण एनर्जी, ये इसमें से पहले बाहर निकलता है। इसके पश्चात पांचवा मुद्दा है कि ये इसमें से फिर दोनों में टकराव होता है। पिछले बार हमने देखा है कि पहले क्या आया, स्पेस आया है और एनर्जी आया है। तो दोस टू क्लैश टुगेदर, ये दोनों का टकराव होता है और इसमें से कई सारे बिंदु बाहर निकलते हैं। तो पहले पेज में इसकी दो छोटी आकृतियां हमने देखी है। इसके पश्चात क्या होता है? And from this whirling chaos, primal elements of fire, water, earth and air come. ये जो टकराव होता है आकाश, स्पेस और एनर्जी, प्राण के बीच में से, इस टकराव से उत्पन्न क्या होता है? जो चार मूलभूत तत्व है, 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑन विच द क्रिएशन स्टैंड्स, वो जो चार मूलभूत तत्व है, अग्नि, पानी, हवा और पृथ्वी या जमीन या मिट्टी। तो फायर, वाटर, एयर एंड fourth is earth. These 4 elements come from the clash of the space and energy. So base of the creation is created, we can say in short. And 7th point is so this is the foundation, we can say in other words, ये जो है मूलभूत है सृष्टि के लिए। वो जो चार तत्व है, यहाँ से उत्क्रांति की प्रक्रिया शुरू होती है। इवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स और इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी बाहर निकलते हैं। और इसको कैसे दिखाना है? तो इसके लिए कॉपी देखिए। बाबा कहते हैं इसमें से अंतिम जो है उत्क्रांति की प्रक्रिया में, वो मंकी है, बंदर है, और वहां पर गोरिल्ला दिखाना है। ये बाबा ने कहा है कि गोरिल्ला जो अंतिम कड़ी बताई जाती है, जो आधा मनुष्य है आधा बंदर है। और इसके बाद में 8th पॉइंट इज गोरिल्ला। गोरिल्ला के बाद में क्या दिखाना है? इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांति की प्रक्रिया में बाबा कहते हैं पहले आप गोरिल्ला दिखाओ, गोरिल्ला के बाद में कैनिबल दिखाओ, मतलब मैन ईटर्स या नरमांस भक्षक, इनको आप दिखाओ। और इस प्रकार से ये कहानी सृष्टि की शुरू होती है। ठीक है, ये बेटी प्लीज कंटिन्यू। All right. There follows the story of XYZ, recounted earlier under the title A Touch of Maya. The text of Margaret Mayo's version is virtually identical to that of the Awakener article, the source of A Touch of Maya, as reproduced in this book, up through the 4th lifetime. And even at that juncture, the life narrative accounts for the 4th and 5th lifetimes are the same.
What Baba's 1931 dictation lacks are the vivid and detailed descriptions of the planes of consciousness. Instead, it provides a final page with a much shorter and sparser description of the first 5 planes. The 6th and 7th planes go entirely undescribed in this document, as follows. Thank Plane you. of conscious. Oh, okay. तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इतना इवोल्यूशन का उत्क्रांति की प्रक्रिया दिखाने के पश्चात आपको ये पिक्चर में क्या दिखाना है, तो एक्स वाई जेड जो 3 कैरेक्टर है, इनकी यहाँ कहानी शुरू होती है कि जो द टच ऑफ माया में भी मार्गारेट मेयो ने अपने इसमें लिखा हुआ है, ये इसके बराबर ही अवेकनर में भी इसका लेख छपा था। तो यहाँ पर ये एडिटर्स ने अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में डाला है। ये जो पैराग्राफ है बाबा के द्वारा दिया गया नहीं है, ये खाली जानकारी के लिए दिया है कि 1931 में जो बाबा का डिक्टेशन था, इसमें ये इतना इन डिटेल नहीं था और शॉर्ट में दिया था। लेकिन जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी पिछले सेशन में कि कौन सी भूमिका में क्या अनुभव होता है, ये हमने इन डिटेल पढ़ा है। Yes, please continue. Planes of consciousness. Planes of consciousness. Number 1, first plane. He sees visions as if in a mirror of great masters of the past with circular auras of light around their forms, and then the forms disappear. Groups of forms appear at a time. Then he sees clairvoyantly different luminous colors, ultra colors, all colors, dazzling, and he hears exquisite sound rhythms. Thank you. So, yes, you can move to next page meanwhile, Dana. And I'll just explain in short about the first plane we have seen last time. पिछले बार sorry, हमने देखा था first plane in detail कि वहाँ क्या अनुभव होता है, कि उसे मधुर संगीत सुनाई देता है और साइट्स दिखते हैं, कुछ कुछ दृश्य दिखते हैं, विविध रंगों के गोले दिखते हैं। इन गोलों में वो अपने गुरु, यदि वो अपनी यात्रा गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है, तो वहां वो अपने गुरु की छवि देखता है इन कलर में। और ये किस प्रकार से ये अनुभव जो होता है, पहली भूमिका हो, चौथी हो, पांचवी हो, कई बार वो अनुभव क्षणिक होता है, आता है जाता है। इट्स जस्ट मोमेंटरी एक्सपीरियंस। समटाइम्स यू एक्सपीरियंस इट, इट वैनिशेस एंड देन यू आर बैक टू योर ग्रॉस कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से जब वो अनुभव होता है, तो पहली भूमिका में इस प्रकार से आपको फिल्म में दिखाना है, ऐसा बाबा ने लिखा है। नेक्स्ट इज सेकंड प्लेन। Sorry, okay. 2, second plane. Here he sees millions of spirits without a dense body, smoke-like, transparent forms, vapory, moving about very rapidly and making signs to each other. He then gets full knowledge from within of all that happens in the world, sees at will any part of the world, hears all sounds, and so on with the other senses. This must be shown in pictures. So, पिछले बार जो हमने देखा था उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि पिछले बार में देखा तो इन डिटेल था, पर कोई बात नहीं, जो है उसी को हम पढ़ते हैं कि दूसरी भूमिका में क्या अनुभव होता है। ये पिक्चर में दिखाओ बाबा कहते हैं, और ये चित्रों के पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना है कि वो कैसे कई सारी आत्माओं को देखता है दूसरी भूमिका में। और ये आत्माएं कैसे होती है, मतलब हमारे जैसा शरीर नहीं दिखता है, एक पारदर्शी शरीर वहां पर होता है। इट इज ट्रांसपेरेंट और इट इज स्मोक लाइक धुएं जैसा होता है, भाप जैसा होता है, सफेद सफेद सा दिखता है उसका, लेकिन आकार बिल्कुल मनुष्य के आकृति जैसा होता है।
और ये यहाँ से वहां कई सारे आत्माएं घूम रहे हैं और ये एक दूसरे को इशारों से बात कर रहे, संकेतों से बात कर रहे। दे आर मेकिंग गेस्टर्स, दे डोंट नीड एनी ग्रॉस फॉर्म मटेरियल टू correspond to with each other। तो क्योंकि ये सूक्ष्म भूमिका का है और सूक्ष्म शरीर से, because they have subtle bodies and they are in the subtle world where the use of the gross medium is not required। तो वहां पर वो जो संकेत एक दूसरे से कर रहे हैं, वो संकेतों के माध्यम से अपनी बातें एक दूसरे को बता रहे हैं। यहाँ पर वो साधक को दूसरी भूमिका में, संसार में जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। वो संसार का कोई भी हिस्से को देख सकता है, कोई भी आवाजें सुन सकता है और बाकी सारे जो है उसको सेंस उसका रहता है। ये सारा चित्रों में दिखाना है, ऐसा बाबा कहते हैं। यस, द थर्ड प्लेन। 3. The third plane. He sees an ocean of fluctuating light, giving impression of extreme restlessness, flickering continually, but is himself aloof from the light. अच्छा, तीसरी भूमिका में बाबा कहते हैं कि यहाँ पर उसको एक बहुत सारा प्रकाश का दरिया दिखता है, लेकिन वो कोई उसका आकार नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है और वहां पर उसको बहुत अस्वस्थता का वो अनुभव कर रहा है। वो प्रकाश जो है फ्लिकरिंग जैसा, दिवाली में हम दीपों की माला देखते हैं, कम ज्यादा चालू बंद होती है, ऑन एंड ऑफ होता है, फ्लिकरिंग लाइट उसको दिखता है। लेकिन यहाँ महत्व इसका काफी सारा, हमने अगर पहले आप देखोगे पिछले का पेज, तो इसमें ये तीसरी भूमिका का कई सारा उसमें दिया है कि वो कैसे रोमांचित हो उठता है और इसकी एक अलौकिक छाप उसके मन पर रहती है, बहुत सारी शक्तियां उसे वहां प्राप्त होती है। ये सब बाबा ने यहाँ पर नहीं दिया है, समहाउ आई डोंट नो व्हाट इट इज, पर यहाँ पर बहुत संक्षेप में दिया है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही इज अलूफ फ्रॉम द लाइट, ही इज नॉट वन विद द लाइट। That means that duality exists. This is the important point Baba is highlighting here, कि यहाँ पर उसका द्वैत कायम है, इसीलिए वो प्रकाश से वो अलग है, प्रकाश के साथ वो अभी तक एक नहीं हुआ है। We'll go to the fourth plane. 4. Fourth plane. He sees the ocean of light, but now it is steady, a smooth white sheet of light, but he still remains aloof from it. He obtains full control of his physical body and can use it as a coat, put it on and off at will. He feels he has tremendous powers at his command and works miracles. Working miracles must be shown, raising the dead, giving sight to the blind, curing the sick. A voice speaks to him, O son, truth lies far beyond all this. Wonderful. So चौथी भूमिका जिसे बाबा कहते हैं, which is a very dangerous step in the journey of spiritual, बहुत खतरनाक होती है, बहुत सारी शक्तियां यहाँ मिलती हैं। तो वहां पर क्या अनुभव होता है साधक को? बाबा कहते हैं वो सारा प्रकाश का दरिया उसको दिखता है। अब तीसरी भूमिका में प्रकाश का दरिया फ्लिकरिंग है, बट हियर ये इट्स नॉट फ्लिकरिंग। यहाँ पर प्रकाश का दरिया फ्लिकरिंग नहीं है, परंतु स्टेडी है, स्तब्ध है, स्थिर है, बहुत सारा प्रकाश है, सफेद से चद्दर जैसा वो है, प्रकाश है। और फिर यहाँ पर भी वो उससे अलूफ है, अलग है, द्वैत कायम है, ड्युअलिटी कंटिन्यूस हियर आल्सो, सो ही इज अलूफ फ्रॉम दैट लाइट। और वहां पर उसको अपने स्थूल शरीर का पूरा नियंत्रण मिलता है। अपने स्थूल शरीर को वो एक कोट जैसा उपयोग करता है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से सूक्ष्म जगत में है। अब वो सूक्ष्म जगत और मनोजगत की दहलीज पर है। अब स्थूल से वो पूरा बाहर आ गया है,
ना ही स्थूल जगत ना ही स्थूल शरीर का अब उसको कोई उपयोग है। तो इसीलिए वो अपने स्थूल शरीर को एक कोट के जैसा, कपड़े जैसे हम बदलते उस प्रकार से उपयोग में करता है, और उसको वो जब चाहे तब पहनता है, जब चाहे निकाल देता है। वो ही फील्स ही हैज ट्रेमेंडस, वो उसे ऐसा लगता है कि उसके पास अनंत अमर्याद शक्ति। चौथी भूमिका जो है वहां बाबा कहते हैं क्रिएशन एंड कॉजेस में अमर्याद शक्तियां चौथी भूमिका में होती है। यहाँ तक कि यदि कोई बहुत बड़ा चमत्कार करना है किसी सद्गुरु या अवतार को, तो उसे चौथी भूमिका में आकर के वो अपने वो चमत्कार करते हैं, जो कि बहुत रेयरली वो करते हैं। और वो भी अगर करेंगे तो सृष्टि के आध्यात्मिक हेतु के कारण करते हैं। और यहाँ पर इतनी उसकी शक्तियां होती है इसके माध्यम से वो कई सारे चमत्कार कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि इन चमत्कारों को कैसा दिखाना है, तो जैसे एक मृत को वो जीवित कर रहा है, अंधे को दृष्टि दे रहा है, बीमार को ठीक कर रहा है, ऐसे चित्रों के माध्यम से आप इसमें मूवी में दिखा दीजिए। और फिर एक उसको आवाज आती है कि बेटा ये सत्य नहीं है, सत्य इसके बहुत पार है। क्योंकि इतनी शक्ति हो करके भी, इतनी पावर हो करके भी अभी भी वो द्वैत के जगत में, अभी भी वो माया के जगत में है। ये माया के जगत में भास है। तो इतनी शक्तियां, ये चमत्कार, ये सब एक भासमय है, ये सत्य नहीं है। इसके यहाँ उसे एहसास दिया जाता है। नाउ द सेम फ्यू थिंग्स आई विल अगेन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, कि again he is aloof, means again he is in the world of duality. Because he is in the world of duality, it is not a truth. So he is given a caution note that this is not truth. Whatever powers he gets in creation and causes, Baba says, unlimited powers he gets in the fourth plane. So much so that if any perfect master or any avatar wants to perform any miracle, big miracle, then they come on the step of fourth plane, they descend down and they do these miracles by remaining from the fourth plane, which very rarely occurs, and it is done only for the spiritual benefit. And because now this fourth stage is a threshold of mental world and subtle world. He is now no more connected with the gross world and gross body. So gross body, it is written that he uses it as a coat, and just like a apparels or clothes, he uses it. That is what he is given here. Now we will go to the fifth plane. 5, fifth plane. He sees the steady ocean of light with himself in it. That is, he is no longer aloof, but is conscious of living in the light. He experiences a great ecstasy and a great extension of consciousness. A voice speaks, "O child, I am beyond even this. Only those who love me, lead a pure life, serve humanity selflessly, and obey a perfect master can come to me." So here, the पांचवी भूमिका में अब वो जो प्रकाश का समंदर है, उसे लगता है कि वो प्रकाश के समंदर के साथ वो स्वयं ही वो समंदर है, वो स्वयं ही वो प्रकाश है, उसी के साथ with himself in it, वो स्वयं उस प्रकाश के समंदर का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पर वो अब मेंटल वर्ल्ड में है, he is conscious about his mental world, he is conscious about his mental body. तो ये अब स्थूल जगत नहीं, सूक्ष्म जगत नहीं, मनोजगत में होने के कारण उस प्रकाश का वो स्वयं एक हिस्सा है, ऐसा उसे महसूस होता है। और अब वो उससे अलग अपने आप को नहीं प्रतीत होता है उसे,
और उस प्रकाश के बारे में अब उसे चेतना है, ही इज कॉन्शियस ऑफ द लाइट, मीन्स ही इज कॉन्शियस दैट गॉड इज देयर. About the God's status he is conscious. That is what Papa has given in God Speaks, कि उसके अभिभान है कि ईश्वर है, जो कुछ घटता है ईश्वर की मर्जी से घटता है, ईश्वर की अवस्था. हमें जो कुछ ज्ञान है वो खाली बुकिश नॉलेज है, किताबों से देखा है, पर वहां वो अनुभव करता है, ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करता है. और इसीलिए वहां पर वो उससे बहुत, जैसे हम देखते हैं हर भूमिका में बाबा ने कहा है कि बहुत और अधिक आनंद की उसे प्राप्ति होती है. तो यहाँ पर वो और अधिक आनंद का अनुभव करता है और उसकी चेतना और अधिक बढ़ती है. और फिर आवाज आती है कि बच्चा, बेटा, मैं इससे भी परा हूं. आई एम नॉट दिस, आई एम बियॉन्ड दिस. जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो एक शुद्ध जीवन जीते हैं, जो एक इंसानियत की, मनुष्यता की निस्वार्थ सेवा करके परफेक्ट मास्टर सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, केवल वे ही मुझ तक आ सकते हैं. मैं अभी भी ये समंदर प्रकाश का मतलब मैं नहीं. So here the first chapter means this chapter, other notes and dictations. मतलब whatever we had seen last, in addition to that, these notes and explanations were given. जो हमने पिछले देखा उसके साथ में ये था. The next chapter is introduction to the planes. Whatever we have seen last time, this is in addition to that, other notes and dictations Baba has given. Yeah, Diana, can you please move on to page number 189, just next to this? Yeah. Yeah, Betty will read, or anyone else, Mr. Prakash, Diana, anyone else want to read? Is it okay for Betty? Sure, I'll continue if you Please, yeah. I will continue like this only. You can read 2 to 3 paragraphs and then. okay. Introduction to the planes. 5 lives have in them the themes of reincarnation, experiences of the planes, illumination, and realization. The soul in the first life, that is the human form, has gained full consciousness of the world and the body. This soul, in the innumerable consequent human forms, which it has to adopt according to the impressions of the world gained through its previous mental, subtle, and gross bodies. Through this full consciousness gets every kind of experience of good, bad, virtue, vice, happiness, suffering. This state is of its experiencing we name M. Later comes the state when it directs its consciousness towards self, and not only world and body, not as it had done before. The state of its directing consciousness a bit towards self, we will name P. Yeah. The Let me please pick up this much. Yeah. So आज भी हम, जैसा हमने देखा है कि बाबा ने कहा है कि उत्क्रांति कैसे होती है, उसको कैसे दिखाना है, फिर आपको उत्क्रांति के अंत में गोरिल्ला को दिखाना है, फिर मनुष्य का मतलब नरमांस भक्षक को पहले दिखाना है. इसके पश्चात जो 3 कैरेक्टर XYZ है, इनकी 5 जन्म का बाबा ने दृश्य दिखाया था, और जिसके माध्यम से बाबा पुनर्जन्म और भूमिका का अनुभव और इल्यूमिनेशन, मतलब प्रकाशित हो उठना, दीप्ति, स्फूर्ति, वहां पर जो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत जो है, अनुभव, जो चेतना और प्रगट होती है, और अंत में साक्षात्कार. तो 5 जन्म में ये प्रक्रिया उन तीनों के बारे में कैसी होती है, खास करके जो कैरेक्टर X था, ये हमने देखा है. अब ये जो आत्मा है को उसका जो पहला जन्म है
ये उत्क्रांति की प्रक्रिया गोरिल्ला के पश्चात का पहला जन्म जो है कैनिमल मैन, कैनिमल वुमन और कैनिमल अनदर थर्ड पर्सन, इसको हमने देखा था XYZ के रूप में, आपको याद होगा। ये नरमांस भक्षक एक अग्नि के अगल बगल में बैठ के मृत मनुष्य की मांस खा रहे, ये दृश्य था। तो इसके बारे में यहाँ पर जो नोट है बाबा ने क्लियर किया है कि इनके ये जो आत्मा है उसके पहले जन्म में मनुष्य का रूप जब उसे मिलता है तो उसकी पूरे जगत की, स्थूल जगत की, अपने शरीर की उसको चेतना होती है। और इसके बाद के हर मनुष्य रूप में जैसे जैसे वो उत्क्रांत होते जाता है और पुनर्जन्म लेते जाता है, वैसे वैसे इस जगत के कर्मों के द्वारा वो संस्कारों को जमा करता है, इम्प्रेशंस ऑफ द वर्ड गेन। और साथ ही उसने मेंटल सटल ग्रॉस बॉडीज, उसकी जो मनो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इनके माध्यम से इन अनुभवों को द्वारा जो संस्कार जमा किए थे हैं वो अनुभव करता है। और थ्रू दिस फुल कॉन्शियसनेस जैसे कहा, और ये जो उसकी अभी मनुष्य की चेतना पूरी हो गई और इस पूरी विकसित चेतना के द्वारा वो अच्छे बुरे, पाप पुण्य, आनंद यातना, ये सारे अनुभव वो अपनी चेतना द्वारा अनुभव करता है। कॉन्शियसनेस पूरा नहीं होगा तो ये अनुभव पूरे नहीं होंगे। इसके पहले की योनियों में कभी भी इस प्रकार का पूरा अनुभव ना ही पशु को मिलता है ना ही पौधे को मिलता है कि पाप पुण्य, आनंद, खुशी, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये मनुष्य की योनि की पहले किसी योनि में नहीं होता है, केवल मनुष्य योनि में होता है। अब ये जो अवस्था है, बाबा कहते हैं ये अवस्था जो अनुभव करता है मनुष्य को, उसको हम एम कहेंगे। अब बाबा ने एम क्यों कहा पता नहीं, शायद मटेरियलिस्टिक है इसलिए एम कहा होगा, बट बाबा ने उसको जैसे 3 जीवन का नाम बाबा ने XYZ दिया, इस अनुभव को बाबा ने एम नाम दिया है। बाबा क्लियर कर रहे हैं क्योंकि मूवी बननी है तो उनको बाबा को समझाना पड़ेगा, इसलिए बाबा ये क्लियर कर रहे हैं। अब इसके बाद में आता है इसका जो चेतना है, केवल मैं, मेरा शरीर और ये जीवन और ये संसार नहीं है। तो उसके अलावा आई एम सो सॉरी, मैं ये जरा इसके पश्चात उसका अनुभव जो होता है, इसकी चेतना पूरी है लेकिन वो पूरी विकसित नहीं है और मतलब प्रगल्भ नहीं है, पक्व नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है, राइप नहीं है, वी कैन से। तो और चेतना को प्रगत होने के, और चेतना को प्रगत होने के लिए उसे और दूसरा अनुभव लेना पड़ता है। और इस स्थिति को बाबा कहते हैं, हम पी कहेंगे। तो पी फॉर पाथ भी हो सकता है कि जैसे वो आध्यात्मिक पथ पर जाके उसे उसकी चेतना और प्रगल्भ हो जाएगी। इसके पश्चात हमारी कहानी में ये जो 3 चरित्र है XYZ, जिनके की कई सारे जीवन है, वो एम स्टेट के है, एम अवस्था के है। यस बेटी प्लीज कंटिन्यू द 3 लाइन्स के बाद इन द 4th लाइन। जय बाबा बेटी। अच्छा हैंग हो गया है बेटी का, लगता है कि मेरा ही हैंग हुआ है। एम आई ऑडिबल? Yes. Yes. हाँ, the 3 lines you have to read from the 3 lines. Yeah, here it is. Oh, I should read on? Yeah, please continue. The 3 lives in our story
comprises of innumerable lives, is of the M state. In the fourth life of our story, the soul is in the P state. It experiences the 5 planes of the spiritual domain. It has full ordinary human consciousness plus sub-superconsciousness. In every consequent plane, the sub-superconsciousness increases step by step till the 5th plane. And here we show what it experiences in each plane. Yeah. From what? I don't know. It's something about Margaret Mayo. So यहाँ पर जो बाबा कहते कि ये XYZ का जो पहले 3 जन्म का चित्र है, ये M स्टेट का है। तो वहां पर अभी उनकी आध्यात्मिक पथ की यात्रा शुरू नहीं हुई, पी स्टेट नहीं है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इसलिए सपोज वहां पर एम स्टेट है। लेकिन उनकी चौथा जीवन महत्वपूर्ण है, जहां पर उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, वेयर दे स्टार्ट देयर स्पिरिचुअल जर्नी, और वो अवस्था है पी स्टेट। यहाँ पर वो 5 भूमिकाओं का वो अनुभव करते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में वो है, अध्यात्म में पूरे है, उनका जीवन है। उन्हें फिर भी सामान्य मनुष्य की पूरी चेतना है। इसी के साथ जो सुपर कॉन्शियसनेस है, उच्च चेतना जो है, उच्च चेतना का भी कुछ अनुभव सब सुपर कॉन्शियसनेस वहां पर है। इसके पश्चात हर भूमिका में उनका जो चेतना है, ये और उच्च चेतना और प्रगल्भ होते जाती है। हर पायदान पे, हर भूमिका में वो बढ़ती जाती है। 5वीं भूमिका तक उनकी चेतना उच्च चेतना हो जाती है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे, बाबा कहते हैं कि 5वीं भूमिका में, चेतना में, उच्च चेतना में वो एग्जैक्टली किस प्रकार का अनुभव करता है। यहाँ पर अच्छा, ये हैव यू रीड दिस लास्ट पैरा? सॉरी बेटी, दे फॉलो सेवरल टाइप पेजेस। और यहाँ पर एडिटर ने कुछ दिया है, ये पढ़ेंगी मैडम पहले, फिर हम देखते हैं उसको। They follow several typed pages. Okay, I didn't read that yet, so I'll read it now. There follow several typed pages of detailed description of the planes of consciousness. This constitutes the full draft of the material that was later rewritten in the document entitled Scenario, which in turn provided one of the direct sources for A Touch of Maya. Introduction to the planes concludes with a description of the 7th plane as below. यहाँ पर कई सारे टाइप पेजेस हैं जिसमें भूमिकाओं का वर्णन किया है, चेतना का वर्णन किया है, जिसको हम पढ़ चुके, वी हैव ऑलरेडी रीड दैट। और यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट मटेरियल है, ये बाद में फिर लिखा गया सिनेरियो नाम से। अब वो सिनेरियो जो है हम इमीडिएटली देखने वाले हैं इसके पश्चात, और यही वो मटेरियल था टच ऑफ माया के लिए। और इंट्रोडक्शन टू प्लेन जो है, मतलब ये इसमें 7वीं भूमिका का वर्णन किया है, जिसको अब हम पढ़ेंगे। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज 190 एंड बेटी विल रीड इट। The 7th plane, where the seer, sight, and the seen are all one. Here, the pilgrim is one with the divine ocean of infinite light. He is now God, the infinite. It is the same soul which was unconscious of either the universe or the self when in the original God unconscious state. The same soul passing through the process of organic evolution gains the consciousness of the universe bit by bit till in the human form it becomes fully conscious of the universe
but unconscious of the self. The same soul, then, through the process of reincarnation till illumination, gains self-consciousness step by step, and so on, and finally the same soul gains full self-consciousness in the state of realization. सो द सातवीं भूमिका में यहाँ बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो साधक है उसे दृष्टि मिलती है, वो सब कुछ देखता है। यहाँ उसकी जो आध्यात्मिक पथ की यात्रा वास्तव में पूरी होती है। उसका जो हर जीव का सृष्टि का जो अंतिम उद्देश्य है ईश्वर साक्षात्कार, वो यहाँ पर प्राप्त करता है। और वो स्वयं ये दैवी समंदर का जो अनंत प्रकाश के साथ एक हो जाता है। वो स्वयं अब अमर्याद ईश्वर है, ही इज नाउ इन्फिनिट गॉड। ये वही आत्मा है जो अपने प्रति अचेत थी, जिसने एक वायु, पानी, पत्थर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। ना ही उसे सृष्टि का भान था, ना ही स्वयं का भान था, मतलब बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, जो परात्पर पर ब्रह्म की अवस्था में थे। वही आत्मा अब स्वयं वापस उसने चेतना प्राप्त करके मैं ही ईश्वर हूँ, ये चेतना उसे प्राप्त हो गई। अब इसकी पहली अवस्था कैसी थी, इसका वर्णन यहाँ पर संक्षेप में बाबा ने किया है। परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड से, जहाँ पर उसे किसी भी चीज का भान नहीं है, मैं ईश्वर हूँ ये भी पता नहीं। वहां से जहाँ पर उसे तो ओरिजिनल गॉड अनकॉन्शियस स्टेट, जिसे बाबा ने टिफिन लेक्चर में बाबा ने बेभान भगवान कहा है कि उसे पता नहीं मैं ईश्वर हूँ, इस अवस्था से ये ही आत्मा कई सारी प्रक्रिया के माध्यम से और कई सारी उत्क्रांति की प्रक्रिया से, फिर इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन, जो इस प्रक्रिया से चेतना, पूरी चेतना प्राप्त करता है उत्क्रांति की प्रक्रिया से। विश्व की थोड़ी थोड़ी बिट बाय बिट हर एक क्रिया में, जब तक को वो मनुष्य के रूप में नहीं आता है, मनुष्य के रूप में उसकी चेतना पूरी विकसित हो जाती है। और फिर भी वो अभी भी स्वयं के बारे में अचेत है, क्योंकि उसे मालूम नहीं मैं ईश्वर हूँ। अब यही आत्मा जो है तो पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी चेतना को उजागर करता है, प्रदीप्ति होती है, इसलिए इसको इल्यूमिनेशन कहा है। वो चमक उठता है उसकी चेतना, और वहां पर उसको स्वयं का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना ज्ञान होने लगता है। अंततः वही आत्मा है, वो पूरी उसकी चेतना अब मानवीय चेतना नहीं, दैवी चेतना बनती है। Now his consciousness is not a human consciousness, it's not a impression consciousness, but his consciousness now becomes divine consciousness, दैवी चेतना उसकी बनती है। और यही अवस्था को रियलाइजेशन या साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार कहा। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म है। अब इमीडिएटली वी विल स्टार्ट, विल गो ऑन पेज नंबर 191 और इसको सिनेरियो, और पेज नंबर 191 सिनेरियो। यहाँ पर बाबा ने केवल मुद्दों के रूप में ये सबको फिर से एक बार हमें बताया है, हम देखेंगे। यस, जय बाबा। All right. Shall I read? या प्लीज। Scenario number 1. God, show still ocean of most dazzling light without any shore or space. Number 2. Point of projection. Number 3. Space and energy. Number 4. Gas, subtle sphere. Number 5. Gas coming in contact with space and energy becomes nebula. Number 6, nebula, gross sphere. Number 7, billions of sparks, heavenly bodies. Number 8, to show billions of huge, enormous, immensely hot, round forms of gas, all rotating at tremendous high speed. थैंक यू।
तो यहाँ पर संक्षेप में बाबा ने बताया है कि कैसे ये फिल्म में क्या क्या दिखाना है, कैसे कैसे दिखाना है। पहले तो आपको ईश्वर को दिखाना है। अब वो कैसे दिखाओगे? तो एक बिल्कुल स्तब्ध समंदर दिखाना है, स्टिल ओशन, मतलब हिलता नहीं है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है, जो कि बहुत प्रकाशित होगा, ऐसा प्रकाश की जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। और ऐसा समंदर, ऐसे प्रकाश का समंदर जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई आकाश नहीं, जो अमर्याद, ऐसा मतलब दिस इज द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड। ये परात्पर पर, बिकॉज इट इज स्टिल ओशन, उसमें कोई हलचल नहीं है, देर इज नो मूवमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज दे वांट टू शो इन दिस मूवी, बियॉन्ड गॉड स्टेट। परात्पर पर ब्रह्म अवस्था को फिल्म में कैसा दिखाना है, हाउ टू शो दिस बियॉन्ड गॉड स्टेट इन द फिल्म, दैट बाबा इज एक्सप्लेनिंग। You show the sea, ocean which has no shore, which has no space, which is dazzling light, but this ocean is not moving at all. It is very still. तो इस प्रकार से परात्पर पर ब्रह्म अवस्था को दिखाना है, लेकिन कैसे दिखाना है? एक प्रकाश का सागर है जिसका किनारा नहीं, जिसको आकाश नहीं है, अमर्याद है और जो बिल्कुल निश्चल है। दूसरा क्या दिखाना है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं ओम बिंदु या क्रिएशन पॉइंट को दिखाना है। वो कैसे दिखाना है? बाबा ने बताया, एक बिंदु मात्र दिखाना है आपको। इस बाबा ने ये भी कहा है क्रिएशन एंड कॉजेस में कि एक राउंड गोल बिंदु से और बिल्कुल सूक्ष्म माइक्रो बिंदु से सृष्टि की निर्मिति कैसे होगी, ये बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में समझाया है। हमने वो पढ़ा है, तो यहाँ हमारे समझ में बिल्कुल बात साफ आती है। तीसरा मुद्दा, क्या दिखाना फिल्म में, कैसा दिखाना है? तो आपको स्पेस और एनर्जी दिखाना है, आकाश और ऊर्जा दिखानी है। और चौथा उसके, क्योंकि वो जो सूक्ष्म बिंदु है, इसी से सबसे पहले बाहर क्या आया? आकाश आया और ऊर्जा आई। अब इन दोनों का क्या होता है? टकराव होता है। इससे क्या निर्माण होता है? जो चौथा मुद्दा जो है, गैस दिखाना, वायु। सबसे पहला उत्क्रांति का बाबा ने ये गॉड स्पीक्स में कहा है कि पत्थर से पहले भी कुछ है रूप, लेकिन उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा ने पत्थर से शुरुआत किया था हमारी समझ के लिए। इसके पहले क्या है? वायु है, लेकिन वो वायु वैसा नहीं कि जिसको संसार की वायु के साथ हम कल्पना कर सकते हैं। दिस इज नॉट द गैस दैट वी कैन कंपेयर विद एनी gases of this gross world. Actually, there are 286 type of gases, and Baba has explained it beautifully. I think we have covered or will be covering that. So this fourth point, Baba says you show gas, that is subtle sphere. The base of subtle sphere या सूक्ष्म जगत का आधार है एनर्जी, या स्थूल जगत का आधार है सूक्ष्म जगत। The base of gross world is subtle sphere, subtle energy. So चौथा मुद्दा है गैस दिखाना है, मतलब सूक्ष्म जगत दिखाना है गैसेस के मार्फत। जो पांचवा मुद्दा है, ये जो वायु है, ये आकाश और ऊर्जा के कांटेक्ट में आता है और यहाँ से नेबुला बनता है ना, जिसको शायद नेबुला को हम गर्भ कह सकते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, शायद मिस्टर प्रकाश या और कोई लिख सकता है यहाँ पर चार्ट में। तो कुछ बनने के लिए किसी का संपर्क में आके संयोग होना है, तो यहाँ संयोग हुआ है, यह आकाश और ऊर्जा का वायु के साथ संयोग होकर नेबुला बनता है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है, और जिसको दिखाना है उनको मूवी में। छठवीं बात है नेबुला, मतलब यहाँ पर स्थूल जगत की शुरुआत होती है, ग्रॉस वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। उसके पश्चात सातवां है बिलियंस ऑफ स्पार्क्स, कई सारे जो स्वर्गीय बॉडीज कह सकते हैं कि स्पार्क्स, मतलब क्या कहेंगे उनको? स्पार्क्स तो हमें सबको पता है कि कई सारे लाखों ऐसे स्पार्क्स होते हैं, फिर उनका आपस में टकराव होता है,
उनमें से और कई सारे गोल निकलते हैं। पहले वो गोल नहीं होते हैं, उबड़ खुबड़ आकार के होते हैं, फिर इसमें से गोल आकार के निकलते हैं। ये सब हमने देखा है इसके पहले लेक्चर्स में। और 8वां दिखाना है कि लाखों ऐसे बहुत बड़े, कई सारे अनगिनत और बहुत गर्म ऐसे गोले निकलते हैं। और वो सब गोले लेकिन गैस के हैं, वायु के गोले हैं, और ये घूम रहे हैं और अत्यंत गति से ये घूम रहे हैं। ये सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई, इस कौन से अवस्था में है निर्मिति की, वहां पर ये 8वीं अवस्था है। Yes. Now, there is one small note here. Diana can just scroll over the page and it is written. Yeah, ये आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये यहाँ दिखाया है। The original manuscript page gives a complete sequential outline of elements and how it all happened. कैसे सृष्टि की निर्मिति हुई, इतनी छोटी छोटी पॉइंट से भी ये इतनी बड़ा ये रहस्य है, लेकिन कितने कम मुद्दों में और पॉइंट वाइज बाबा ने इसको बताया है। इतना बड़ा ये रहस्य को कितने थोड़े शब्दों में बाबा ने उसको बताया है, ये बहुत अद्भुत है। Yeah, so we can move on to page number 192. Point number 9. All right. Number 9, to show incalculable sparks, billions of suns, millions of bodies, one of which is our Earth, very, very hot. Number 10, solar system, worlds, and planets. Number 11, show world having crust, uneven rocks with gaps as shown in the diagram, and gas in the center. Number 12, show the world having a crust, uneven rocks filled in with water coming out of the liquidated gas, thus forming oceans. Number 13, show 276 stages between subtle gas and nebula. 14, show evolution of mineral beginnings from electron. Number 15, show evolution of vegetables, original leal to seaweed to vegetable kingdom, and a few major vegetable species. Number 16, show animal evolution according to the chart. Number 17a, show the 4 lives and 5 planes as under. 17b, show the 5th life and 6th and 7th plane as under. So now first let me complete this 9 to 17 and then we'll read the last para. तो 9वीं जो पॉइंट है, पिक्चर में क्या दिखाना है, बाबा कहते हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, ऐसे लाखों सूरज और स्पार्क्स और लाखों ऐसे हेवनली बॉडीज दिखाओ, और जिसमें से एक हमारी पृथ्वी भी है जो कि बहुत बहुत गर्म है। यहाँ पर पूरा 10वीं पॉइंट में पूरा सोलर सिस्टम बताओ, विश्व बताओ, प्लैनेट्स, ग्रह, तारे, सूरज, चांद, सूरज, तारे सब दिखाओ। इसके पश्चात आता है तो ये पृथ्वी कैसी बनी, जो हमने देखा कि एक बहुत गर्म गोला है, ये जो सारे गोले आपस में टकराए, इनमें से कई सारे लाखों गोले वापस निर्माण हो गए, इसमें से ग्रह तारे निर्माण हो गए। ऐसे हमारी पृथ्वी भी एक गोला था, गर्म गर्म गोला, लेकिन गोल था। जैसे जैसे ठंडा होता गया, ये वायु का गोला, गर्म वायु का गोला था, जैसे ठंडा हो गया तो पृथ्वी के ऊपर की परत तैयार हो गई, जो कि कठिन है, जो हम आज धरती देखते हैं, क्रस्ट है। ये क्रस्ट निर्माण हो गया पृथ्वी का, और इसमें ठंडे होते समय ये वायु जो है, गर्म वायु उछल रहा था,
तो इसके कारण ये पर्वत, जैसे वो ठंडा उछला है उसी हालत में ठंडा हो गया तो उसका पर्वत बन गया। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर ये पर्वत बने हैं जैसे जैसे वायु ठंडा होता गया। लेकिन ये पर्वतों के बीच में जो गैप रह गए हैं, इस गैप में वही वायु जब और ठंडा हो गया तो उसका पानी हो गया और ये पर्वत के बीच में गैप में वो बन गया है। वो पर्वत कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, उसके बीच में गैप कैसा बना है, तो ये सब डायग्राम में बताया है। हमने भी वो डायग्राम देखा है, पढ़ा है। और इसके बीच में जो वायु बहता गया है, इसके बाद में विश्व का जो क्रस्ट दिखाया है, ऊपर की परत दिखाई है, अनइवन रॉक्स दिखाए हैं, पत्थर कैसे बने, पर्वत कैसे बने, पानी कैसे बना, इसके बीच में पानी समंदर बना। जैसे वो वायु ठंडा होता गया उसका भाप से पानी बन गया और वही समंदर है जिसको हम देखते हैं जो लिक्विड गैस है, उसके मार्फत से ये समंदर बना, ये दिखाना है। इसके पश्चात 13वें पॉइंट बाबा सब पॉइंट वाइज लिख रहे कि फिल्म कैसी बनाई है। समवन कम फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर दिस, या बनी भी होगी तो पता नहीं है कि इसके बीच में 276 स्टेजेस के वायु के, तो ये वायु और नेबुला के बीच में 276 प्रकार के वायु है और ये बहुत अलग वायु है जो कि इस भौतिक दुनिया में ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। कैसे प्रकार के ये वायु है ये सब हम आगे देखने वाले हैं। और वो नेबुला कैसा बना, तो हमने पहले देखा कि आकाश ऊर्जा और वायु का संयोग होने से नेबुला बना है। अब यहाँ पर उत्क्रांति की प्रक्रिया दिखानी है 14वीं स्टेप पर। मिनरल मतलब धातु कैसे बने, इलेक्ट्रॉन कैसे बने। इसके पश्चात 15वीं स्टेप पर दिखाना है कि उत्क्रांति की प्रक्रिया में वेजिटेबल जो वनस्पति कैसे बने हैं और वनस्पति कैसे बने, तो समुद्र बना पहले। समुद्र में समुद्री जल, समुद्री वनस्पति कैसी बनी, ये हमने पिछले बार देखा कि सबसे पहली जो समुद्री वनस्पति है लील है और फिर सीवीड है। कि जैसे धातु पे एक जंग पकड़ता है उसी प्रकार समंदर के पानी में एक जंग जैसा जो वनस्पति का है, इसे सीवीड से वहां से वनस्पति कैसे निर्माण हो गई, वनस्पति का साम्राज्य कैसे बना। पहले प्रकार की वनस्पति कौन सी, 1 से लेके 7 प्रकार की वनस्पति हमने पिछले बार देखा है। और जो महत्वपूर्ण वनस्पति है उनके जो प्रकार है उनको दिखाना है। इसके पश्चात 16वीं स्टेप पे दिखाना है कि पशु जगत की उत्क्रांति, और जो चार्ट में दिखाया है उस प्रकार से पशु जगत दिखाना, ये भी दिखाया है। आगे जो प्रकरण है कि मास्टर चार्ट जो है, इसके पश्चात जो आएगा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ फिल्म मास्टर चार्ट, इसमें कई सारी आकृतियां हैं, वो सब हम करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर तो पॉइंट वाइज बाबा ने एक संक्षेप में इतनी बड़ी योजना को बताया है सृष्टि की। तो 16वें भूमिका में पशु जगत को दिखाना है। 17वीं स्टेप में 2 है, एक ये है उप प्रकार, उसमें है जो 4 जीवन लिए हैं, 4 जीवन पट, 3 कैरेक्टर XYZ के 4 जीवन में पुनर्जन्म के, रीइंcarnation के, उनके 4 जीवन में किस प्रकार के उनका जीवन होता है और चौथे जीवन काल में वो आध्यात्मिक पथ पर कैसे जाते हैं और 5 भूमिका का अनुभव कैसे होता है। और फिर 7वां 17वां जो है निहारिका, थैंक यू, और 17B जो है वो वहां पर दिखाना है कि 5वें जीवन काल में जो एक्स कैरेक्टर है वो 7वीं भूमिका तक कैसा प्रवास करता है और उसे ईश्वर साक्षात्कार कैसे मिलता है। तो जो बियॉन्ड गॉड स्टेप पहला है और 17वां जो है वो है ईश्वर साक्षात्कार। कितना इट इज सो वंडरफुल, जो इतनी ह्यूज क्रिएशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को विद इन 17 पॉइंट्स बाबा हैज लिस्टेड इट आउट।
is a wonderful thing, I think. Okay, the next last paragraph, Betty, can you please read? Through the papers. Though the papers. Oh, okay. Sorry. It's okay. Though the papers have been disordered and scattered over the decades, it appears that scenario contains several more pages. The immediate sequel to the preceding, which ought to comprise the story of XYZ through their first 3 lifetimes, is missing. The story picks up, however, with the story of the prince, X, in his 4th lifetime, just as he is starting to experience the first plane of consciousness. Oh. From this point, the manuscript constitutes the clear and immediate source for A Touch of Maya up through the 6th plane. The final page appears to be missing, however, and A Touch of Maya concludes as in the Margaret Mayo dictation on December 3rd, 1931. थैंक यू बेटी। यहाँ पर इसमें कौन से पेजेस गायब है, कौन से पेज में क्या है, सीनियर हो कौन सा गायब है, वो सब दिया है, एडिटर का है, उसमें ज्यादा माथा पच्ची करने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये सीनियर हो जो बाबा ने दिया है अद्भुत है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जटिल है, और इस विश्व की निर्मिति को हमारे मास्टर ऑफ मास्टर्स ने बियॉन्ड गॉड स्टेट से लेके ईश्वर साक्षात्कार तक का इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतना पैक 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 करते रहते हैं। 17 मुद्दों में केवल बाबा ने उसको समेटा है। हैट्स ऑफ। नो वर्ड्स, आई लाइक दिस so much. The whole creation he has just summarized in 17 points. Master. Yeah, so I think we will stop here today. I was thinking to take the explanation of the film master chart, but I think we will, it is around 4-5 pages with so many nice pictures and all that, but and the chart and all that. We have to come prepared for that. I hope Dinah has all these pages right from page number 193 to page number 200 or 199. And that presentation Mm. will be the main part next time. This one, exactly. Wonderful it is. You can just scroll down. Shall we take in the next session or shall we start today as per, because I would think next, yeah. yeah, I too think because this what now we have summarized 3 chapters. And it isn't it wonderful that such a long story, complicated explanation, Baba is, oh, Yeah, beautiful, beautiful. and in, I wish someday the film gets made because the please, visual we can ask for this page of Kulkarni. And the Westerners can also try. You try to get this film made, Baba. Is so much he has given in detail how to show, what to show, and how to show it. That also beyond God's state. Also, he has explained how to show it. Show a ocean of light still, without any space, without any shore. It's wonderful. Cool. Yeah. So thank you so much. Thank you, Baba. Thank you, Betty, Dinah, Prakash, and all of you. And I think we'll go for Aarti. Anyone? Any our Westerners will like to sing Aarti, or shall I search someone from Easterners? Yeah, Valli can sing Aarti today. But better, we'll ask Valli to sing Aarti. Okay. जय बाबा। जय बाबा। कोई भी हिंदी वाली बोलना भाई,
हम लोग क्या है गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। इससे तो अच्छा है अपना हिंदी मराठी बोलो। हाँ You can even sing that Telugu Aarti, no problem. ओके Thank you, Baba. अवतार मेहर बाबा की जय. Yes, please, जय बाबा वल्ली. जय बाबा देवादिदेवा प्रेम स्वभावा प्रभो मेहर बाबा प्रियतमा मन सुहारती दे मन सुने हारती गई गुनुमा నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే మనసునే హారతి గై గొనుమా దేవాదిదేవా ప్రేమ స్వభావా ప్రభో మెహర్ బాబా ప్రియతమా మనసు హారతి దే అహంకారము హారతి కాగా ఇహమే పరమై ప్రకాశించగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే దేవాదిదేవా ప్రేమ స్వభావా ప్రభో మెహర్ బాబా ప్రియతమా మనసు హారతి దే अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा. मेहर बाबा की जय बहुत बढ़िया. Thank you, Valli, and I'll like to request Mr. Prakash to say in short about this Aarti. Or the meaning, or Oh, it's very beautiful. I know, but I'll have to really prepare a little bit because I don't want to say arbitrary meaning for this song. So maybe next time, if you don't mind. meaning of this song shall I speak shall I say Yeah, please go ahead. Go ahead. Yeah. the first నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య నామం నామం means always you have to remember the name of the God. That is the first sentence. Madini smarinchu, name of the God in your heart. Always remember his name from your heart. That is the first. Second one is నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు నీ దివ్య రూపం आपका जो दिव्य रूप जो है उसको हृदय से देखना है हृदय से आंखों से नहीं you have to see the God see Baba through your heart not your eyes నీ దివ్య పదములే आराधिंचु और किसको आराध्य करना है उनके पदों को उनके feet को you have to just bow down your head on his feet. That is the third sentence. నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు మము కరుణించవయా మము కరుణించవయా means हमें ऐसा काम करने के लिए आपका करुणा हमारे ऊपर बरसाते रहे so that we can do all these things. आपका We may get your grace so that we can see you as you are. We can take your name from deep or from our heart. Yes.
Yes, 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 please yes. continue in English. Then Next. second is ahankaramu. Ahankaram means ego. अहंकारमो आरती कागा. आपका जो ईगो है, आपका जो जेलस है, all these things you have to burn in आरती. तेल नहीं डालना है. We should not add oil into that to give that arati to Baba. What we have to add, we have to, as ego and jealous, all these things you have to burn. Then your heart will become very pure. Ahankaramu harati kaga ihame paramai prakashinchaga. अगर हम ये सारे चीजें करेंगे, if we do all these things, then ये जो इहम है, इहम means ये जो धरती है, ये स्वर्ग बन जाएगा. This earth will become a heaven. This is the meaning of that sentence. Ihame paramai prakashinchaga. It will shine, it will brightly, it will shine. The earth will shine like स्वर्ग. स्वर्ग बन जाएगा और shine bright हो जाएगा. ऐसा बोल रहे हैं. ihame paramai prakashinchaga pahi sharanu sayujamu pondaga. Then when we are there at the feet of Baba, फिर हमें भी बाबा आगे आगे पहुंचा. ऐसा है इसका meaning. Thank you. I don't know that much Thank of you. Hindi, No, it's not perfect. much of English. Very good. And I had tried my Baba. No, you did a great job. I just Yeah, wonderful. Wonderful. Thank you so much. You have Thank good you. voice and you have sang nice arti and you explained also. Thank you. Beautifully. Yeah. Jai Baba. And the Jai Baba. Vespatar Wesley always says, na, the Premashram boy, use Ah. Baba from heart. He uses the word from your soul and not by the yeah. I Thank you. Jai Baba. thank you, Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. Loving Jai Baba to all of you. Avatar Meher Ki Jai. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. Thank you all of you. Jai Baba. Now all can say Jai Baba. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar. Avatar Okay. Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Baba Ki Jai. जय बाबा Jai Baba. अवतार मेहर बाबा की जय लविंग जय। मेहर बाबा टू ऑल पार्टिसिपेंट्स Thank you, Meher Krupaji. Jai Baba. Thank you, Prakash. Thank you, Baba. I will talk to you later.